And we have with us three distinguished guests. All of you have visited Tejgarh Tribal Academy. So Dr. Ganesh Devi and Surekhaben, તમે પણ આવો મને લાગે. પછી એમની ઓળખાણ કરાવો. So Dr. Ganesh Devi and Dr. Surekha Devi, husband and wife, whom I know for nearly 4 decades. And they were instrumental in starting this institution in Tejgarh, and a very committed couple. Dr. Devi, Ganesh Devi, is a man of literature. He just shared that he completed 100 books this year or this month. Okay. And has earned a lot many awards to his credit, including Padma Shri. He is a thinker, a new wave kind of thinker. But still, today he will talk to you about the ancient Indian philosophical texts. But he is a social activist, and for the tribals of Gujarat, India, and elsewhere, he has done a lot of work, tremendous work. And I'm very fortunate to have been associated with him for so long. I can give a big introduction about him, but I think I'll cut down the time. Then we also have Dr. Surekha Devi, who was a teacher of chemistry in the Department of Chemistry of the MS University of Baroda, and she retired as the head of the Department of Chemistry, and a very distinguished person. A wonderful couple I know, who have been inspiring me for almost 4 decades. So me and Dr. Ganesh Devi worked together, started our work together in 80s, and are still associated. Not directly, because it's far from me, but still we are associated. Today he is going to talk to you on the ancient Indian texts, popularly known as the Vedas, Upanishads, Shardarshanas, etc. But he has a unique way of talking about these texts. And I would request him to use a mixture of languages for the benefit of the not only the students, but we have other participants also from general batches. And थोड़ा आपको वेद उपनिषद का परिचय ऐसे देना चाहिए कि आप नतमस्तक नोटबुक में सीधे लिखते जाओ, ऐसा मैं चाहता नहीं. डॉक्टर देवी आपको ऐसे बात करेंगे जैसे एक विषय आपके हाथ में दिया जा रहा है, आप शोधक बनेंगे, है ना. तो तैयार खाना आपको देने वाले नहीं है, आपके दिमाग को बहुत परेशान करेंगे. तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर देवी को हाँ 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 मैंने ख्याल છે એ તમને આપું લો કોના હાથે કરાવું છે. ઓકે. A very humble welcome, floral welcome. We also have one more guest with us today. Today happens to be Adivasi Mela in Tejgarh, and Aditi ji, a retired IAS officer, has accompanied them, and I welcome her also. So thank you so much, Surekha Ben and Aditi ji, and I think we'll begin with the talk. Thank you so much. Take your seat. We have online students also. નમસ્કાર. અવાજ પહોંચે છે? સંભળાય છે? બધાને
नमस्कार। आप हिंदी समझते हैं? अंग्रेजी? ठीक है, तो मैं हिंदी में बात करूंगा। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि जितनी खराब हिंदी में मैं बात करूंगा वो जहां तक आप समझे वो समझना। नॉर्मली कोई भी लेक्चर देने आते हैं तो सबसे पहले वो बताएंगे कि मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूं या करने वाली हूं, लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ अयोग्य बातें करना चाहता हूं। अयोग्य इसलिए कहा कि आप सब योग के, योगा उसका शब्द है योग, आप सब योग के विद्यार्थी है, साधक है, और योग की अल्टीमेट डेफिनेशन, अंतिम मर्यादा कि आपका जो चित्त है, मन है, वो निश्शब्द बनाना। लेकिन मैं शब्दों की बात करना चाहता हूं, इसलिए मैंने अयोग्य ये शब्द का इस्तेमाल किया। आप समझ रहे हैं? थैंक यू। मैं शब्दों की बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हमें बहुत बार अपने चिंतन में, अपनी साधना में और अपने जीवन में जो मूल्यवान ग्रंथ है उनका सहारा लेना पड़ता है। हर विषय पे चिंतन करके उसके बारे में निर्णय लेना ये एक जिंदगी में संभव नहीं है। इसलिए हमारे पहले और किसी ने चिंतन किया हो तो हम उसका सहारा लेके आगे कदम रखते हैं। तो ये जो चिंतन है हमारे पहले का, वो हम कहाँ समझे? तो उसके लिए जो कोई सोच हो, कोई लिखा हो, कोई किताब हो, कोई मौखिक परंपरा में आया ज्ञान हो, तो उसका सहारा लेते हैं। और उन सब चीजों को हम सीधा अंग्रेजी शब्द है टेक्स्ट, टेक्स्ट के रूप में पहचानते हैं। तो मैं वो भारतीय टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, और ये भारतीय टेक्स्ट जो है वो मेरी नजर में किताबें हजार हो लेकिन टेक्स्ट एक ही है, उस नजर से मैं देख रहा हूं। मैं कोई विशिष्ट किताब के बारे में, पिछली बार मैं आया था तो शायद ऋग्वेद के बारे में मैंने कुछ बात आपके सामने रखी थी, कुछ साल पहले यहाँ आया था। तो कोई एक विशिष्ट किताब या ग्रंथ के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन एक इंडियन टेक्स्ट जो भारतीय ज्ञान का संचय है उसकी बात करूंगा। अब ज्ञान शब्द समझते हैं, नॉलेज, विजडम, तो वो शब्द भी थोड़ा गहराई से देखना जरूरी है। आप अगर किसी चीज की मोशन देखे, चलन, और वो माइक्रोस्कोपिकली देखे तो उसमें चलन भी होता है, मूवमेंट होती है, और फ्रिक्शन भी होता है। शायद आप में से जिन्होंने फिजिक्स किया हो वो जानते हैं कि फ्रिक्शन के बगैर मोशन संभव ही नहीं है। आप कोई वाक्य देखते हैं तो उसमें शब्द होते हैं, लेकिन दो शब्दों के बीच में खाली जगह भी होती है। अगर वो खाली जगह ना हो
और मैं बहुत जल्दी से बोलने लगूं तो आपको अर्थ प्रतीति नहीं होगी। साइलेंस एंड स्पीच टुगेदर मेक लैंग्वेज। मूवमेंट एंड partial loss of movement make together make motion। तो जब मैं भारतीय ज्ञान का, भारतीय विजडम का टेक्स्ट कह रहा हूं तो उसमें मेरे मन में ये भी है कि कभी कभी उस ज्ञान परंपरा में खंडितता आई है, कुछ लिंक्स ब्रेकअप हुई है, कहीं पे रुकाव भी आए हैं। ये नहीं कि कोई नदी बहती है तो हमारे नजर को तो बहती दिखती है, लेकिन अगर कोई हाइड्रोलॉजिस्ट को लाके आप पूछे तो उसमें भी दे विल लुक एट द करंट ऑफ अ रिवर इन अ ग्रैन्युलर वे। या तो मेरी जो जीवन साथी है सुरेखा देवी, उनको पूछे तो उसमें वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एनालाइज करके मुझे कुछ बताएगी। तो इसलिए दोस्तों, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा या विजडम के तरफ देखते हैं तो ऐसे भी मौके हमें समझने चाहिए जब ये परंपरा खंडित हुई, वहां ब्रेक्स आए, कुछ गैप्स रहे, कुछ नई शुरुआत हुई, कुछ पुराना रिजेक्ट हुआ। ये सब होता है तभी ट्रेडिशन बनती है। हम ट्रेडिशन शब्द समझते हैं आप, जो अंग्रेजी में 15वीं सदी के बाद उसका इस्तेमाल हुआ था। और ट्रेडिशन का अंग्रेजी में अर्थ था टू ट्रेड ऑन। आपका वो एक्सरसाइज के लिए ट्रेडमिल मशीन होता है ना, टू ट्रेड ऑन, आगे जाना। और उस आगे जाने में हर जनरेशन में कोई रुकावट आती है और नए सिरे से वो जनरेशन फिर से आगे जाने की शुरुआत करती है। ये अर्थ उस ट्रेडिशन शब्द में शामिल था। अगर मैं आपको हमारा कोई शब्द परंपरा, ट्रेडिशन को गुजराती में अपने परंपरा कहिए, चाहे अपनी प्राचीन परंपरा છે કે प्राचीन હોય કે अर्वाचीन, પણ परंपराનો शब्द वापरीએ છીએ। तो परंपरा शब्द जो है, हमें लगता है कि एक शब्द है, असलियत में दो शब्द है। एक है एडजेक्टिव और दूसरा है, एक है विशेषण और दूसरा है नाम। मैं अंग्रेजी का उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि वो ज्यादा आपके लिए शायद आसान होगा। अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं कि ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री, यानी गुड से बहुत बेहतरीन। आप समझते हैं ना? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट। तो पर शब्द है, पर यानी अदर, एलियन, डिफरेंट, बॉर्डर, उसके बहुत सारे, उसका सुपरलेटिव डिग्री है। गुड का बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इस तरह से पर का सुपरलेटिव डिग्री परम है। पर, परातर, परम। तो जो परम है, द बेस्ट गुड, आप समझ लेते। somebody will say this way is the very best good for you in your life। परम बहुत ही पर है, ऐसे परम परा। ये शब्द मैं ट्रेडिशन की बात कर रहा था। अंग्रेजी में, हमारी भाषाओं में परंपरा शब्द जो है उसका अर्थ होता है कि इतने पुराने, इतने अलग समय से
जो अलग समय हम समझ भी नहीं पाएंगे, इतने अलग, इतने डिफरेंट, इतने बहुत ही अलग किस्म के समय से आया हुआ, उसे परंपरा कहा जाता है। उस परंपरा शब्द में आप स्व शब्द जानते हैं, जैसे स्वराज में स्व शब्द है, स्वाभिमान में हो सकता है, स्वत्व में हो सकता है। स्व जो नहीं है वो पर होता है। स्वाधीन, पराधीन। जो स्व नहीं है वो पर होता है, यानी कुछ अलग होता है, और बहुत ही अलग इज परम। तो बहुत ही अलग समय से, बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट से चलता आया, लेकिन हमारे तक आया है, उसे परंपरा कहा जाता है। इज दैट ये मैं आई एम नॉट रीडिंग एनी न्यू मीनिंग इन दिस इज व्हाट द वर्ड इज सेइंग। ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये उसका डिक्शनरी मीनिंग है। मैं जब भारतीय नॉलेज या विजडम ट्रेडिशन की बात कर रहा हूं, तो उस ट्रेडिशन ने हमें गैप्स और कंटिन्यूटीज, ब्राइट स्पॉट्स एंड डार्क एरियाज, हमारे मुताबिक नॉलेज लेकिन अलग नॉलेज, ये दोनों इकट्ठा देखे तो ही हमें पूरी परंपरा, पूरी भारतीय नॉलेज सिस्टम हम समझ पाएंगे। और अगर उस ढंग से नहीं देखे तो जैसे ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की स्टोरी तो आप जानते हैं, कितने वो 12 या 4 ब्लाइंड मैन या 12 ब्लाइंड पता नहीं, लेकिन वो उस हाथी का रूप कभी समझ नहीं सकेंगे। और हमारा जो हाथी है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वो एक हाथी से बहुत ही बड़ा हाथी है। वो सबसे पहले मैं बताता हूँ कितना बड़ा हाथी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई मेटाफर। नहीं तो कोई जाके लिखेगा डायरी में कि आज एक कोई गृहस्थ आए थे, गृहस्थ यानी क्योंकि उनकी पत्नी भी साथ थी इसलिए गृहस्थ ही कह सकते हैं। तो और उन्होंने हाथी के बारे में लेक्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिफेंट्स। अंग्रेजी में कहावत है, द एलिफेंट इन द रूम, यानी द फैक्ट विच इज वेरी मच देयर बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट, उसे एलिफेंट इन द रूम कहा जाता है। यानी रूम में बैठ के हम पिन देख सकते हैं, पेपर देख सकते हैं, पेपर में, लेकिन बड़ा हाथी सामने उसको पहचानते नहीं, उसे एलिफेंट इन द रूम कहते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ए बिगर एलिफेंट इन आवर माइंड्स। भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय विजडम परंपरा। मैं नॉलेज, ज्ञान शब्द के लिए भी थोड़ा मेरे मन में हिचकिचाहट है, क्योंकि विजडम और नॉलेज, ये दोनों, विजडम नॉलेज वेरीफाइड होता है और विजडम स्फूर्त होता है, उत्स्फूर्त होता है, इंट्यूटिव होता है, जिंदगी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। इसलिए मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये हाथी कितना बड़ा है, परंपरा कितनी बड़ी है, इसके बारे में कुछ साइंस के एंगल से मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं, और फिर आप तय कीजिए कि एलिफेंट कितना बड़ा है। ये आप जब योगा पोजीशन में बैठते हैं तो उसका एक कार्डिनल प्रिंसिपल, जिसके सामने कभी पाप नहीं कर सकेंगे, जो कभी तोड़ना नहीं है, और वो है द पोजीशन ऑफ योर स्पाइन। करोड़रज्जु आपको सीधा पकड़ना, वो जो अरेंजमेंट ऑफ द बैक, योर बैकबोन, उस अरेंजमेंट में जिस जानवर की पैदाश हुई, बल्कि लाखों करोड़ों स्पीशीज है,
ऐसे हमारे जैसा करोड़रज्जु यानी बैकबोन होने वाले जानवर को होमो सैपियन कहा जाता है। होमो यानी इंटेलिजेंट और सैपियन यानी जिसका वो बैकबोन। और योगा इज टीचिंग यू टू कीप योर बैकबोन इंटैक्ट। इंसान, मैंने एक कहा योग टीचेस wants you to become निशब्द, but it also requires your becoming a human सबसे पहले। इस होमोसैपियन का इतिहास एवोल्यूशन के प्रोसेस में, उत्क्रांति के प्रोसेस में कभी 20 लाख साल तक पहुंचाया गया है, कभी 12 लाख साल तक पहुंचाया गया है। तो उसमें ये हुआ था, जैसे आपने फ्रॉग देखा है, फ्रॉग, उसको मेंढक, तो उसके अलग कलर्स होते हैं, अलग साइजेस होते हैं। हम सब उसको फ्रॉग कहते हैं, लेकिन आप अगर जूलॉजिस्ट को पूछो तो वो बोलेंगे कि ये 8 अलग अलग स्पीशीज है। बटरफ्लाई हम कहते, मराठी में फुलपाखरू बोलते, बहुत सुंदर शब्द है बटरफ्लाई। तो वी थिंक इट इज वन, but ask a botanist and they'll say there are about 6,000 varieties of butterflies. Species है 6,000 species of butterflies. तो ये सैपियन की हम मानते कि एक there were several species, सैपियन species. उसमें से कुछ हमारे से ज्यादा ऊंचे थे, तगड़े थे ज्यादा। निएंडरथाल नाम था उनका, होमो इरेक्टस नाम से। वो तो हिमालय में यति के सर्च में लोग जाते तो कभी कभी होमो इरेक्टस की कुछ फुटस्टेप्स उनको देखने मिलती है जो ईस्ट एशिया में थे। ऐसी अलग अलग स्पीशीज से वन होमो सेपियंस सर्वाइव हुए। इस होमो सेपियन का कुछ 20 लाख साल से इस दुनिया में होना प्रूव हुआ है, 20 लाख साल से। लेकिन उन 20 लाख सालों में बहुत ज्यादा ठंडक के जमाने आए और बहुत ज्यादा गर्मी के भी जमाने आए। और ये जमाने केवल एक दिन या एक महीना, एक साल नहीं, लेकिन कभी कभी तो हजारों साल तक रहे। द लास्ट आइस एज, the last that we have seen, took place from 18,000 before 18,000 years, 18K before our time, till 12,000 years before our time. 6,000 साल ठंडक हो तो लोग मर भी जाते हैं, कुछ जिंदा रहते हैं। ये लास्ट आइस एज में हम जिंदा रहे क्योंकि तब तक इंसान ने अग्नि उत्पन्न किया था। They understood warmth, fire, और वो केव के अंदर रहते थे। आप में से कोई अगर मध्य प्रदेश में गए हो तो वहां भीमबेटका नाम की एक जगह है, आपने देखी है। तो 30,000 ईयर ओल्ड, उस समय वो गुफा के अंदर रहते थे। अगर तेजगढ़ के पास भी एक छोटी गुफा है, बहुत छोटी है, लेकिन वो भीमबेटका की विशाल है। तो दे वे देयर। लेकिन होमोसेपियन का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन जो होमोसेपियन कंटिन्यूअसली आज तक आया उसका इतिहास 12,000 साल पहले से हम बहुत अच्छी तरह से चित्रित कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ, वी कैन थिंक अबाउट the history of Homo sapiens for the last 12,000 years in the most systematic way. अब ये 12,000 साल पहले क्या हुआ इसे? तो वो ये हुआ था कि जैसे हम हमारे दिन, आज मार्च की 14th है, तो हम दिन, महीना ऐसे गिनते हैं नॉर्मल एक्टिविटी में लाइफ के। तो एनवायरमेंटल एजेस जो गिनते हैं वो लोग उसको
मार्च अप्रैल फरवरी ऐसे नाम नहीं देते, अलग अलग नाम दिए। तो एनवायरमेंटल पर्यावरण का पर्यावरण की मर्यादा, पर्यावरण का विस्तार का अभ्यास करने वालों ने 12,000 साल पहले के एक नए युग का आरंभ हुआ, उस आरंभ को, पर्यावरण के नए युग का आरंभ हुआ, उसे होलोसीन नाम दिया है। आपके नोटबुक में ये शब्द जरूर लिखना आप, HOLOCENE, होलोसीन। ये 12 HOLOCENE, होलोसीन। होलोसीन में हुआ ये कि तापमान बढ़ने लगा और उसके पहले के 6,000 साल में जो बर्फ इकट्ठा हुई थी वो पिघलने लगी, और 12,000 साल से हमारे पूर्व में 9,000 साल तक, 3,000 साल में, आप विषुववृत्त जानते, इक्वेटर, पृथ्वी के सेंटर, उसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का बर्फ पिघल गया और जमीन साफ हो गई। वहां तृण, ग्रास आने लगा, अब कुछ घास आने लगी, पौधे आने लगे। तो पंछी भी जो जिंदा थे वो वहां जाने लगे। माइग्रेटरी बर्ड्स की आदत आपने देखी होगी। माइग्रेटरी बर्ड्स पृथ्वी के शायद 35 या 40 डिग्री डिस्टेंस हर सीजन में, हर साल में तय करते हैं। कुछ अफ्रीका से यहाँ आते हैं, कुछ यूरोप से यहाँ आते हैं। ये 12,000 साल पहले से उनकी आदत है। सो द बर्ड्स इंक्रीज। जब पंछी होते हैं तो जानवरों को खाने के लिए एग्स ऑफ बर्ड्स मिलते हैं, जानवर बढ़ने लगे, और इंसान जो अग्नि के सहारे खुद को बचाए रखा था गुफाओं में, वो बाहर आके वो जानवरों को खा सका, यानी फूड बिकेम अवेलेबल। सो 9,000 years बिफोर द क्रिश्चियन एरा, आज से 9,000 years बिफोर क्रिश्चियन एरा, लगभग आज से 11,000 साल पहले, लाइफ स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग। कुछ 2 या 3,000 साल ये सिलसिला चला। तब ईरान में, आज जिसे हम ईरान कहते हैं, उस समय उसे ईरान नहीं कहा गया था। उस समय, आज वहां पे शायद इस्लाम होगा, उस समय इस्लाम नहीं था, हिंदू नहीं था, क्रिश्चियन नहीं था, एक इंसान था, इंसान। उस एरिया में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई। अब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट यानी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई बड़ा डिस्कवरी थी। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट का मतलब है, जो हंटर गैदरर्स थे, जो जानवर पकड़ के कुछ भी मिलता है वो खींच के खाते थे, उनको पता चला कि वो सीमित एरिया में ही रह के भी उनको सब कुछ मिल सकता है। तो कुछ सीमित एरिया में, सीमित शब्द समझते हैं ना, लिमिटेड एरिया, रिलेटिवली, दे कुड गैदर। सो दैट हैबिट ऑफ लाइफ मेक्स देम एग्रीकल। क्योंकि चिक्कू आए तो निकालना, आम आए तो निकालना, केले आए तो निकालना, वो खाना, नेक्स्ट ईयर डू द सेम थिंग अगेन। दैट स्लोली also replenishing those trees, those kind of saplings, ये करने लगे। Agriculture grew in the area that is now known as Iran some 9,000 years before our time, and slowly it spread to other parts of the world. हमारे यहाँ लगभग आज से 6,000 साल पहले एग्रीकल्चर आ पहुंचा था।
नाउ यू विल आस्क मी क्वेश्चन कि क्या लोग केवल ईरान में थे और यहाँ नहीं थे? क्या ईरान में ही विजडम था और यहाँ नहीं था? उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। जो होमोसैपियन का आरंभ का माइग्रेशन हुआ वो अफ्रीका से 65,000 ईयर्स बिफोर आवर टाइम शुरू हुआ था और 45,000 साल पहले वो पूरा हुआ था। उन 20,000 साल में ये जो जानवर था होमोसैपियन, जो कपड़े नहीं पहनता था, जिसे अग्नि की पहचान नहीं थी, इस तरह का जानवर से इंसान बन रहा था। ये 20,000 साल में पूरे एशिया में दरिया किनारे से, हमारे भारत के दरिया किनारे से वो दक्षिण तक जाके अंडमान तक जा पहुंचा था और फिर ऊपर आके ईस्ट एशिया में गया था। आप मुझे सवाल पूछेंगे कि सर आप बिल्कुल ब्लफ कर रहे हैं, अंडमान कैसे पहुंचेंगे, वहां तो दरिया होता है, पानी होता है। बट प्लीज रिमेंबर, व्हेन द होलोसीन बिगैन, आई सेड देयर वाज ए लॉन्ग आइस एज। लेकिन उसके पहले 45,000 ईयर्स, 60,000 ईयर्स पहले जो आइस एजेस थी उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती थी और उस समय दरिया की जो पानी की लेवल है which was nearly 10 meters lower than what it is. और कभी कभी the ice ridges allowed people to walk across short distance. ये सब हुआ है। उनके पास कोई खास विद्या थी या खास विजडम था इसलिए नहीं। Anyway, ये जो लंबी स्टोरी है वो खेती आने के बाद लाइफस्टाइल में बदल होता है, शरीर की पोजीशन बदलनी पड़ती है। काम करते समय बहुत ज्यादा झुकना पड़ता है, पृथ्वी को स्पर्श करना पड़ता है। हंटर गैदरर की शारीरिक पोज फुटबॉल प्लेयर के तरफ होती जैसी होती है, कूदना, उछलना। किसानों की शारीरिक पोजीशन काम में अलग होती है और किसान खेत की कृषि काम करने वाले परिवारों की स्त्रियों का काम भी अलग होता है, शारीरिक पोजीशंस बदलती है। उस समय रफली 6,000 साल पहले इजिप्ट में लिखना शुरू हुआ। सबसे पहले लिपि का विकास इजिप्ट में हुआ। वहां पिरामिड्स भी बने थे। पिरामिड्स इसलिए नहीं बने थे कि वो ज्योमेट्री जानते थे, पिरामिड्स इसलिए बने थे क्योंकि उनको छाया का आकलन बहुत अच्छी तरह से होता था। छाया कैसी गिरती है, सूरज कहाँ होने से, और उसके आधार पे पिरामिड्स बने उन्होंने। दे वांटेड टू क्रिएट ए शैडोलेस स्ट्रक्चर। पिरामिड बनाते समय नहीं बना पाए। दे वर राइटिंग। अब राइटिंग क्यों आया था? जहां व्यापारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स की सिस्टम शुरू होती है वहां लिपि तैयार होती है। ये मैं एज ए लिंग्विस्ट मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, लिपि का उद्भव या उगम, लिपि कोई आसमान से गिरती नहीं है। स्क्रिप्ट्स डोंट कम बाय डिवाइन गिफ्ट। स्क्रिप्ट्स बिकम नेसेसरी where exchange emerges in a society. हमारे यहाँ 45,000 साल पहले दक्षिण हिंदुस्तान में जो लोग बसे थे उनमें एक्सचेंज इकोनॉमी तब तक नहीं आई थी जब ये एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। वो लिखते नहीं थे, वो बोलते थे और बहुत कुछ याद रखते थे। मेसोपोटामिया यानी इराक, ईरान और इराक, वहां कुछ लिपि का उद्भव हुआ था क्योंकि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में उतरे लोग थे। वो एक के पास से काम करवा के, लेबर लेके
उसके बदले में कुछ खेती का जो फसल आते उसका हिस्सा देते थे. So that is why Egypt and Mesopotamia created scripts first. Now, agriculture is moving into India. People are already there. पूर्व के तरफ थे. पूर्व की तरफ से हमें दूसरी प्रकार की खेती आई. एक तरफ से हमें गेहूं की खेती आई, दूसरी तरफ से राइस की खेती आई. ये दोनों के समय अलग थे. खेती के साथ साथ एक्सचेंज इकोनॉमी आती है और स्क्रिप्ट आती है. लेकिन जिस एरिया में स्क्रिप्ट का उद्भव नहीं होता, वहां के लोग बहुत कुछ जानते हुए भी लिख नहीं सकते, इसलिए स्मृति परंपरा पे आधारित रहते. और वो जिस अंग्रेजी में एक शब्द है बहुत अच्छा, निमोनिक्स, यानी स्मृति, बहुत सारी स्मृति एक जगह रखने के ट्रिक्स. अपने हाई स्कूल में जब थे और आपको स्पेक्ट्रम जो होता है रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, उसका शॉर्ट फॉर्म मैं मराठी में ताना पी ही नीपा जायचं, तांबडा यानी मराठी में तांबडा, नीला, पिवळा, हिरवा, तो वो फिर एग्जाम में याद रखते थे कि इस. सो दीज आर कॉल्ड नेमोनिक्स, मेमोरी ट्रिक्स. कोई भी देहात में आप जाए और कोई मजदूरी करने के लिए आदमी बाहर गया होगा, तो औरत दीवार पे ऐसे कुछ लिटी रेशा निकाले, कितने दिन हुए, कितने महीने हुए. कुछ कभी कभी वो मेहंदी लगाने का और रंगोली निकालने का भी हेतु ओल्ड मेमोरीज इस रखने का. आज तो हमारी रंगोली डिजाइन बन गया है और कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन करते हैं. बट रंगोली शब्द के शुरुआत में दिस वेर मेमोरी ट्रिक्स. इस मकान में रहने वाले लोगों का ये इतिहास है. आप तेजगढ़ में अकेडमी में गए हैं, वहां एक पिठोरा नाम का चित्र होता है. पिठोरा इज द ओरल मेमोरी ऑफ द राठवा पीपल. मेकिंग साइंस, रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषा का विकास 70,000 साल पहले से हुआ है. इंसान भाषाएं बोलता था और जहां भी इंसान गया वो अपनी भाषा लेके गया. छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने से पॉपुलेशन नॉट्स बनती है, पॉपुलेशन के छोटे छोटे तबक हिस्से बनते. लोग आगे जाते, दूसरी जगह रुकते हैं. जहां फसल ज्यादा है, जहां खाने का ज्यादा है, पानी है, वहां छोटा ग्रुप रह जाता है, दूसरे लोग आगे जाते. हर जगह अलग अलग भाषाएं बनती है. तो भाषाएं तो बहुत सारी थी और ये भाषा फैलती भी थी. लोग जैसे घूमते थे उनके साथ अपनी भाषा ले जाते थे. एक भाषा ऐसी थी जिसमें से टोकरियान नाम की भाषा पैदा हुई. वो चीन की तरफ गई. टोकरियान, एक्चुअली मैं हूं, मेरा गोत्र, मेरे माँ बाप ने बोला टोकरियान गोत्र है, टोकरियान गोत्र. तो मेरे शायद 200 जनरेशन पहले वो लोग वो भाषा बोलते होंगे. उसी भाषा का रिलेटेड दूसरी भाषा थी ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, पर्शियन. ये इंडो आर्यन भाषा थी. इसमें आर्य नाम के कोई लोग नहीं थे, ये भाषाओं के नाम है. इस इंडो आर्यन इज नेम ऑफ अ लैंग्वेज फैमिली, लैंग्वेज फैमिली. तो पर्शिया में जो लैंग्वेज फैमिली की ब्रांच चली गई, उसमें लिखने का तरीका पैदा हुआ था. तो लोगों ने लिखा. हमारे यहाँ जो भाषा आई या जो प्रसार हुई या बढ़ी, लिखने का तरीका नहीं था, तो हमने मौखिक परंपरा में याद रखा. जेंद अवेस्ता, ये नाम आपने सुना होगा, अवेस्ता. अवेस्ता की जो भाषा है, अवेस्तन भाषा, अवेस्ता लिखने का समय है ईस्वी सन पूर्व 800 से 600, 800 years बिफोर क्राइस्ट टू 600 years बिफोर क्राइस्ट अवेस्ता लिखा गया. ऋग्वेद was composed 1400 years बिफोर क्राइस्ट. यानी अवेस्ता के
800 साल 600 साल पहले, अवेस्ता 800 साल बिफोर क्राइस्ट, ऋग्वेद इज 1400 years बिफोर क्राइस्ट। ऋग्वेद पर्शिया से यहाँ भाषा आ रही थी, नोमैडिक हैबिट्स के, उस समय देशों की सीमाएं नहीं थी। ये सब नॉनसेंस हमने खड़ा किया है पिछले 200 साल में, 300 साल में। अपना देश, अपना सब, तो लोग घूमते थे इधर से, पासपोर्ट नहीं था उस समय, वीसा नहीं था, कोई नहीं, नेशनल बाउंड्रीज नहीं थी, तो पीपल वेर मूविंग, और उनके जो अनुभव है वो इकट्ठा करते थे, मेमोरी में रखते थे। कुछ जगह वो लिखे गए, कुछ जगह लिखे नहीं गए। नाउ आई विल कम टू आवर विजडम टेक्स्ट। हमारा जो विजडम टेक्स्ट है उसमें ऋग्वेद के पहले यहाँ एक और सभ्यता, सिविलाइजेशन बनी थी, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु संस्कृति, और उसका फैलाव काफी बड़ा था, सेवरल लाख स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया था, और उसमें शहर होते थे। बड़ौदा के नजदीक भी ऐसा शहर है उस समय का। तो वो नागरी, इट इज कॉल्ड राइज ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट फेज। हमारे देश में विलेजेस आने के पहले शहर आए हैं, प्लीज थिंक ऑफ दिस। हाँ, पहले शहर फिर गांव आए हैं। तो वहां का जो ट्रेडिंग के लिए मार्क्स बनाए गए, सील्स बनाए गए, वो हम पढ़ नहीं सकते। इसलिए वो लोग क्या सोचते थे, क्या नहीं सोचते थे, क्या बोलते थे, उनका चिंतन क्या था, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। लेकिन वो लिखते थे, इसलिए उनकी ओरल ट्रेडिशन में कुछ हमारे पास आता, ये संभावना खत्म हो गई। Anybody will ask me a question कि अगर हम वेद सभी ओरल मेमोरी में रख सके, तो हड़प्पा का सब विजडम हम ओरल मेमोरी में क्यों नहीं रख सके? क्या कमी थी हमारे में उस समय? हर सिंधु संस्कृति का समय है 2500 years बिफोर क्राइस्ट टू 1900 years बिफोर क्राइस्ट, यानी 2500 साल से 1900 साल। उसके बाद एक 500 साल का गैप है, एंड देन कम्स ऋग्वेद 1400 साल बिफोर क्राइस्ट। तो आप पूछेंगे कि हड़प्पा की स्मृति परंपरा हमें क्यों नहीं मिली? तो उसका कल्प्रिट समझते हैं आप? गुनहगार राइटिंग था, क्योंकि वो लिखते थे, लेकिन वो क्या लिखते थे वो आज तक डिकोड नहीं हो सका है। और डिकोड इसलिए नहीं हो सका, उन्होंने जिस चीज पे लिखा था वो टैबलेट्स, दे वेर नॉट मेड ऑफ लास्टिंग मेटल, लास्टिंग मटेरियल, और जो मिले वो सफिशिएंट संख्या में नहीं है कि जिससे हम इकट्ठा करके उसका मतलब निकालें। सो दे हैड थॉट अबाउट अर्बन सिविलाइजेशन। पूरे सिंधु संस्कृति में आर्मी का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया गया था, उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं किया था, वो संपूर्ण शांति प्रिय लोग थे। उनमें कोई सरकार या दरबार और बाकी के कामगार ये भेद नहीं था। दे वर ऑल इक्वल पीपल, ऑलमोस्ट इक्वल। और वहां स्त्रियों की इज्जत बहुत ज्यादा थी, वो मूर्तियों से पता चलता है, लेकिन उनकी जो शब्द है, वी हैव लॉस्ट ऑल ऑफ दैट। हमारे विजडम और नॉलेज का जो बड़ा टेक्स्ट है, उसमें 6000 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से 8000 साल खेती का उद्भव समझते हैं ना, इमर्जेंस हुआ, तब से लेके 1400 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से 3500 साल, ऑलमोस्ट फर्स्ट 4500 years wisdom that we have is available to us
not through books, but only through conventions of simple people. शायद हड़प्पा का कुछ विजडम, खेती का कुछ विजडम आयुर्वेद में आया होगा, शायद खेती के तरीकों में आया होगा, उसकी वो किसान की पानी की और मिट्टी की समझ वो परंपरा में है। लेकिन मैंने कहा था कि परंपरा इज सम मेमोरी ऑफ द पास्ट एंड सम फॉरगेटफुलनेस ऑफ द पास्ट। तो बीच में ये बहुत बड़ा एक गैप है। देन कम ऋग्वेदा, और मैं आई विल कम टू द कंक्लूजन ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ। ऋग्वेद से शुरुआत करके आप सब जानते हैं कि 4 वेद की रचना हुई। आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ये उन्हीं के आधार पे, उन्हीं में से एक्सट्रैक्ट किए, उन्हीं में से प्रोसेस किए विजडम। और वेद इज ऑल्सो ए कलेक्टिव वर्क वेयर मेनी पीपल, मेनी फैमिलीज रिटेन। उसमें से कुछ फैमिलीज के एक दूसरे के साथ झगड़े भी हुए थे, लेकिन वेद बनाने वाले लोगों के पास, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं था, सिंधु, वो 2 चीजें थी। एक था घोड़ा। ही विल बी शॉक्ड, मैं ये जो शब्द बोल रहा हूं, हॉर्स ड्रिवन कार्ट, पहिया लगाया हुआ, घोड़े के ताकत से खींचा गया जो व्हीकल था, वो वॉर वेपन बनाया गया था स्टेप्स में, यूरेशियन स्टेप्स में। आज जहां उज्बेकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, आपके देश के मैप के ऊपर जो 3-4 देश है, वहां से ये घोड़े के मदद से पुल किया गया गाड़ी, रथ जिसे कहते, that came from a civilization, उसे सिंताष्टा और अकेडियन, ये 2 वहां, जैसे अर्बन राइज सिंधु में हुआ था, ऐसे वहां भी हुआ था। लेकिन वहां कुछ डिस्टरबेंसेस आए थे, उनको बाहर निकलना पड़ा, उनके झगड़े चल रहे थे, दे मूव्ड दिस साइड। और वो टेक्नोलॉजी वैदिक लोगों के पास थी। आप वेदा में अश्व का उल्लेख बहुत बार देखेंगे। हड़प्पा में अश्व नहीं है, बैल है। बैल, एक बैल वाली सभ्यता, बड़द वाला संस्कृति अने घोड़ा वाला संस्कृति, ये हमारे संस्कृति के फाउंडेशन से। आप हंसना मत, ये बहुत महत्व की चीजें हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बड़ी राजा कहते हैं मराठी में किसान को। एनीवे, ओरल संस्कृति में कुछ टेक्स्ट बने उपनिषद तक। उसके पहले पाली भाषा की पूर्व भाषा जो थी, वो पूर्व भारत के पूर्व में, जिसमें गौतम बुद्ध ने 700 साल, यीशु के पहले 700 साल बहुत सोफिस्टिकेटेड फिलोसॉफी दी। उसी समय भगवान महावीर ने, देखिए जैन फिलोसॉफी में 500 years बिफोर क्राइस्ट एक संकल्पना है, उसमें काल, समय का मेजर अणु एटम्स में किया है, काला अणु। टाइम इज ए मैटर, जो हम अभी मॉडर्न फिजिक्स में टाइम एज ए डायमेंशन, टाइम एज ए रियलिटी समझते। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न साइंस वाज नोन टू जैन फिलोसोफर्स, लेकिन बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए सोफिस्टिकेटेड भाषा की जरूरत थी। वो पाली प्राकृत होते थे। सो ऑल ऑफ दिस कम टुगेदर। और दक्षिण में द्रविड़िक भाषा में
कुछ स्पेस के बारे में बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस थे। टोल्कापियम नाम का, या अबाउट 200 इयर्स बिफोर क्राइस्ट, टोल्कापियम नाम का ग्रंथ है। उसमें स्पेस दो प्रकार की होती है, स्पेस, अवकाश। वन इज द आउटर स्पेस, द अदर इज द इनर स्पेस of this psychological space. That's a very fine concept. खैर, महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, त्रिपिटिका, गौतम बुद्ध की, जैन ग्रंथ परंपरा, उसके बाद हमारी भक्ति काव्य, कालिदास के नाटक या भवभूति के कविता, हमारे पिछले 1000 साल में बने कबीर, मीरा, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता, ये हजारों किताब हमारे पास है। लेकिन हमारे ज्ञान परंपरा का पूरा टेक्स्ट, हमारा एंशिएंट टेक्स्ट, हमारे परंपरा का जो टेक्स्ट है, उसमें कुछ एरियाज डार्क है, अननोन है, कुछ एरियाज नोन है। और जो नोन है, जो हमें पता है, उसके बारे में, हर टेक्स्ट के बारे में सर्टेनिटी नहीं है। जैसे महाभारत एग्जैक्टली कब लिखा गया, तो अप्रोक्सीमेटली 800 इयर्स बिफोर क्राइस्ट जय इतिहास था। अबाउट 200 इयर्स बिफोर क्राइस्ट उसका महाभारत बन गया, 1 लाख वर्सेस का। We know all that. Basically, मुझे ये कहना है कि हमारे देश में जितने भी लिखा गया, सोचा गया, स्वीकारा गया, उसमें एक चीज मैंने देखी है कि वो सब लोग बहुभाषिक थे हमेशा। जो संस्कृत बोलते थे वो पाली को स्वीकारते थे, पाली बोलते थे वो प्राकृत को स्वीकारते थे, जो द्रविड़िक भाषा बोलते थे वो दूसरी भाषा स्वीकारते थे। और इसीलिए दक्षिण में भी राम चले गए और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी चला गया, स्वीकारा गया। जब से लिपि आई तो भाषा थोड़ी कंसोलिडेट होती है, सॉलिड हो बनती है और इनफ्लेक्सिबल बनती है, और फिर वो दूसरी भाषा की तरफ तिरस्कार के नजर से देखती। जहां राइटिंग शुरू में आया हमारे पहले, वो सब संस्कृति गिरी, और हमारे यहाँ जब राइटिंग आया तो पहली बार समाज में विभाजन होने लगा। कुछ ज्यादा सनातनी बनने लगे और कुछ गौतम बुद्ध या ओरल और महावीर ओरल भाषा में बोलते थे, वो थोड़े सुधारक बनने लगे। आज भी हमारे देश में जिसे हम अनपढ़ कहते ना, गवार कहते ना, वो लोग सबको स्वीकारते, हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। और जो ज्यादा पढ़े लिखे ना, जो ज्यादा अपने घर में कार रखी है, सोफा सेट है, टीवी है, वो ज्यादा इनटॉलरेंट बन गए कि अरे ये तो अलग धर्म का है इंसान, वो अपने को पोल्यूट कर रहा है। ये सब फिलोसॉफीज, देखिए मैंने कहा वेदों का जन्म होता था तो वो पर्शियन जमीन से पंजाबी जमीन तक आते आते हुआ। अगर आपको कोई कहे कि आपकी पुण्य भूमि कौन सी है, मातृभूमि नहीं, पुण्य भूमि, तो आपको स्वीकारना पड़ेगा वो तो पर्शिया, यानी वो तो अफगानिस्तान है। तो प्रॉब्लम थी, जैसे आप समझ रहे हैं। देखिए ये राइटिंग लोगों को तोड़ता है और जिंदा नॉलेज परंपरा लोगों को जोड़ती है। बहुभाषिकत्व हमारे देश की नॉलेज परंपरा है। उसमें जो डार्क एरियाज रहे हैं, वहां कुछ फॉल्स इंटरप्रिटेशन देके लोग अपना थैला भरते रहे, और जो संत है वो अपना थैला खाली करके लोगों को इकट्ठा ला रहे हैं। बिकॉज वी आर सो मेनी, वी आर टुगेदर।
We are not together because we have one source of tradition. We have many traditions, we are together. And that's the beauty of India. And मैं इस इंडिया को 100 बार झुक के नमन करता हूँ. India which accepts everybody and everything because हमारी कोई सीमा नहीं है. India is not a nation with national boundaries. India is a limitless country which accepts entire humanity as equal humans and pure humans. धन्यवाद. Thank you. सुनने के बाद हमारे पास कुछ प्रश्नों की गुंजाइश है, अगर कोई पूछना चाहे तो. गुड, आइए यहाँ पर. सर, आपने डार्क एज के बारे में बताया, तो मुझे थोड़ा जानना है कि डार्क एज क्यों आया था और कौन से एरा में आया था. There was an ecological incident which ran almost for 200 years. और वो था रात बहुत ठंडी होती थी और दिन बहुत गर्म होती. जैसे अभी ये टेम्परेचर है ना, हमारे 15 दिन पहले बड़ौदा में ठंडक रात को है, दिन को गर्मी पड़ी है. ये लगभग 200 साल चला और उसका about 2000 years before Christ to 1800 years before Christ उस समय में हुआ. और उससे जमीन में मिट्टी के ग्रैन्युलर सॉलिड फॉर्म बनता है, डेजर्टिफिकेशन होता है. ये डेजर्ट जो है वो इंडस सिविलाइजेशन को मार गया. It was no longer possible to survive there. इसलिए लोगों ने खुद को शहर से मुक्त किया और फिर से घूमने लगे. राजस्थान में सबसे ज्यादा जो घुमटकर लोग दिखने मिलते हैं ना, तो वो हड़प्पन संस्कृति के बिल्कुल आज तक आपके पास लाने वाले लोग हैं. इसके ऊपर एक तनुजा कोठियाल नाम की अच्छी हिस्टोरियन है, उन्होंने किताब लिखा है कि सिंधु संस्कृति क्यों चली गई. कुछ लोग मानते थे कि उन्होंने आर्मी डेवलप नहीं की इसलिए गई, ऐसा नहीं था. इट इज बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल चेंजेस. ये है. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ. ये सयाजीराव गायकवाड़ ने जो बड़ौदा का कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, रेड ब्रिक, बहुत सुंदर बिल्डिंग है. लेकिन 100 साल के बाद जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो एसी के लिए व्यवस्था करते हैं. आपके किसी के घर में एसी नहीं हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ. सयाजीराव के घर में था एसी? नहीं था. In 100 years time, if so much change happens, population must increases, so climatic changes happen. Climate is the, मैं बोलता हूँ खुदा जो है ना, भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो हमारी डेस्टिनी ललाट रेखा लिखता है. लेकिन सबसे ज्यादा असरकारक कंट्रोल हमारे पे करने वाला जो भगवान है वो पर्यावरण है. We live in time and space and environment. टाइम और स्पेस से छुटकारा मिल सकता है. टाइम से छुटकारा मैं फैंटेसी में जाऊं तो मिलेगा, स्पेस से छुटकारा मिलेगा मैं कोई मशीन के आधार से ग्रेविटेशन तोड़ सकूंगा, लेकिन एनवायरनमेंट से कोई छुटकारा है नहीं. And that humans have not understood till today, because I said you write the word Holocene. Now you please write another word, Anthropocene. Anthropocene. Anthropo, and POCENE. 6 साल पहले scientists all over the world got together and they declared that we have entered Anthropocene. Anthropocene यानी इंसान पर्यावरण को मार ही देगा इसकी गारंटी उसका आरंभ हुआ है. So we are today standing at the end of civilization. हमारे में जो हिंसाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये सब ये सिम्टम्स है शुरुआत के
हम सिविलाइजेशन खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण ने इंसान को मौका दिया, इंसान ने पर्यावरण को ठुकरा दिया, ये बात है। सर, एक और प्रश्न है। जैसे सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, फिर इंडस आया, उसके बाद वेदास, उसके बाद जैसे आपने बताया भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, उसके बाद वगैरह वगैरह। तो जो अभी का टाइम चल रहा है, अभी का, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को और हड़प्पन को अभी याद कर रहे हैं एक सभ्यता के फॉर्म में, तो आफ्टर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज ये टाइम को कौन सी सिविलाइजेशन से याद किया जाएगा? दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। जो सिविलाइजेशन आए उसके कुछ कारण थे, और वो कारण थे इंसान ने टूल्स बनाए। अगर आप कभी भी विजिट के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाए तो माइक्रोलिथ, पत्थर के सहारे बहुत बड़े पत्थर के हथियार, फिर पत्थर के बहुत सुंदर छोटे छोटे हथियार, तरकारी काटने के लिए, नाखून पॉलिश करने के लिए छोटा हथियार, क्रश करने के लिए, पील ऑफ करने के लिए, जैसे डॉक्टर सर्जन के हथियार होते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल हर तरह की, जिसे मैं कह रहा हूं सर्जरी कर सके ऐसे पत्थर। सर्जरी यानी डॉक्टर वाली सर्जरी नहीं, आई एम यूजिंग ए मेटाफर कंपैरिजन। माइक्रोलिथिक जो इंस्ट्रूमेंट्स बने, उससे वो सिविलाइजेशन, माइक्रोलिथिक इंस्ट्रूमेंट बनने से इंसान का लेबर कैपेसिटी स्टेडी रह के भी प्रोडक्शन बढ़ता है। हथियार की मदद से कम काम में ज्यादा आउटकम आता है। जब हथियार बदलते हैं तो सिविलाइजेशन बनता है। आज एक नया हथियार इंसान बना रहा है, और उस हथियार का नाम है डेटा। डाटा या डेटा। डाटा का मतलब है गुस्सा किया, लेकिन डेटा हैज बिकम ए टूल, एंड एवरीबडी। देखिए, आपके कम से कम 4-5 दोस्त तो ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई ऐप बनाया है। कुछ ये सब माइक्रोलिथिक जो पत्थर के बना रहे थे ना, उससे बिल्कुल सिमिलर ये मूवमेंट है। एंड दिस डेटा रेवोल्यूशन, ये कोई खास अलग नहीं है। जो माइक्रोलिथिक रेवोल्यूशन हुई थी और इंसान ने जानवर से खुद को इंसान जैसे बनाया, आज ये जो रेवोल्यूशन हो रही है, इससे इंसान को ऐसे लगता है कि वो होमोड्यूस बनेगा। होमोड्यूस यानी देवों का राजा, इंद्र, ग्रीक फिलोसॉफी में। होमो यानी इंटेलिजेंट किंग ऑफ गॉड्स बनेगा। वो पूरे कॉस्मोस को कॉलोनाइज कर सकेगा, ऐसे लग रहा है इंसान को। बट देयर इज वन डिफिकल्टी, and the difficulty is the microlithic revolution was followed by a favorable climatic condition। होलोसीन की शुरुआत हुई, और डेटा रेवोल्यूशन इज अटेंडेड बाय एंथ्रोपोसीन यानी क्लाइमेट डिक्लाइन की शुरुआत। इसलिए ये सिविलाइजेशन बनाने वाला नहीं, खत्म करने वाला होने वाला है। आई एम सॉरी टू से दैट, इसमें भाषा बिल्कुल चली जाएगी। ह्यूमंस विल बिकम साइलेंट, दे वोंट बी एबल टू स्पीक इन अनदर 100 or 200 years। फैमिली एंड सोसाइटी कंप्लीटली ब्रोकन। आज भी घर में 4 लोग खाना खाते तो हर एक के हाथ में वो मोबाइल होता है, कोई भी खाने के तरफ नहीं देखता, दूसरे के तरफ नहीं देखता। यहाँ तक कि पुराने समय माँ बच्चे को लेके सोती थी, सुलाती थी। बच्चा आखिरी बच्चा जब सोते समय आंख बंद कर रहा, या तो सुबह उठते आंख खोलता था तो माँ को देखता था। आज आप रात में जब आंख बिल्कुल बंद होने की है, उस समय आपका लास्ट मैसेज क्या है देखते हैं, और उठते ही पहले
मैं जब बच्चा था ना तो मेरे माँ बाप बोलते थे कि यार तमें कई श्री राम कहजो, जय श्री गोपाल कहजो, ये अल्लाह कहजो, कुछ तो कहजो। आज मैं उठता हूं तो सबसे पहले मेरी आंख खुलने के पहले हाथ जाता है मोबाइल को लेके, ऐसा फिर मेरी आंख खुलती है। वी आर स्लीपिंग विद डेटा, डेंजरस। इसमें योग है, निशब्द, ये शब्द मैंने कहा था। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, योग इज ऑल्सो, इट शुड ऑल्सो बी ए मेथड ऑफ मेकिंग यू डेटालेस। डेटालेस। आप बैठ सकते कि नहीं, ऐसा फोल्ड कर सकते कि नहीं, हाथ स्ट्रेच करके यहाँ लगा सकते, उससे भी आप 2 दिन तक आपका मोबाइल बाजू रखते हैं कि नहीं, यही आपके योग की टेस्ट होनी चाहिए। थैंक यू सर। नहीं, आप यहाँ बैठेंगे अभी डॉक्टर देवी, मैं उन्हीं की बात से पूरा करता हूं। मैं निशब्द हूं, अवाक, ताज्जुब, स्तब्ध। 70,000 सालों की यात्रा की, आपको अंदाजा आया कि नहीं पता नहीं, है ना, 70,000 सालों की। तो बहुत रोचक थी, इतिहास था, भाषा थी, परंपरा थी, लेकिन कुछ जगह पर आकर उन्होंने आपको और मुझे छोड़ दिया। मतलब वेदों की शुरुआत कैसे हुई उस बात का केवल उल्लेख करके हमको छोड़ दिया। तो मैं चाहूंगा कि बाकी की यात्रा हम अकेले करेंगे कि उनको दोबारा बुलाएंगे। तो ऐसा करेंगे कि हम आपको पूरा 1 दिन या पूरे 2 दिन हम आपको हमारे आपके साथ रहेंगे हम, है ना। तो शायद मैं उनको कई सैकड़ों बार सुन चुका हूँ। मैंने पहली बार उनको सुना था चंची मेहता प्रेक्षागृह में। तब से लेकर आज तक मैं उनको मेरा आदर्श मानता हूँ, अपने तथ्यों की रजूआत के लिए। कैसे ठंडे कलेजे से, ठंडे दिमाग से, है ना। तो मैं खूब आभारी हूँ कि कल शाम को वडोदरा पहुंचते ही उनका फोन मेरे पर आया। मैं इतना खुश हो गया कि एक बिल्कुल जिसकी मैं इच्छा या सपना भी नहीं देख सकता था, ऐसी एक अवकाश पैदा हो गया और इसका हमें लाभ मिला। तो डॉक्टर देवी, मैं एक बात बताना आपको भूल गया उनकी पहचान में, कि वो भाषा के स्वामी है, अंग्रेजी भाषा के। वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे और शब्दों के करामती है, शब्दों के स्वामी है। तो शब्दों पर बहुत सारी किताब लिखी है, किताब है उनकी सत्य, ट्रूथ पर, जो पढ़ने लायक है ना। मतलब कि प्रत्येक शब्द को आप एक वैज्ञानिक या शोधक की भांति, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आकर्ण धनुरासन या योग, तो परम पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए अर्थ तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन अर्थों को छोड़ दीजिए। आप अपनी शोधक हैसियत से प्रत्येक शब्द का प्रतीति खुद पैदा करें। ऐसा एक मैं उनसे सीखा हूँ, क्योंकि जब मैंने ट्रूथ किताब उनकी पढ़ी तब पता चला कि प्रत्येक शब्द इंसान का खुद का प्रतीतिकर होना चाहिए। तो आप आज पधारे और मुझे लगता है कि आप सबको भी अपना शुक्रिया अदा करना चाहिए अपनी अपनी हैसियत से। कैसे करेंगे? तो मैं आपको भरोसा देता हूँ कि सर को मैं दोबारा यहाँ ले आऊंगा कभी। हरि ओम।